Today we are going to discuss about the critical constant of a gas. So we take a gas which can be either real gas or a ideal gas. Now if we take the real gas and according to the van der Waals equation of a gas, if you plot a graph between P and V, then the graph comes out like this. At different temperatures, we calculate the value of P and V and we plot the graph at different temperatures. So at 13.1 degree centigrade, the graph comes out like this. At 21.5 degree centigrade, the graph comes out like this. And 31.1, the graph comes out like this. And 38.5, the graph comes out like this. And 48.1, the graph comes like this. So you see, as the pressure is increased, at point this 13.1, you can see that the vapor is converted to the liquid. Here if you take the carbon dioxide gas or any gas, then you see that at this point, at this volume, the pressure is increased and the gas is converted to the liquid. Again, in the 21.5 degree centigrade, this is converted, vapor is converted into the liquid form. Again, now at 31.51, you see that the change in state. Now again, you see, if you see the experimental graph, the experimental graph comes out a straight line like this, and then this. Now this is the theoretical graph. At 31.1 degree centigrade, the graph comes out like this. In this case, the state of change at 30.9 degree centigrade, the gas can be converted to the liquid. Otherwise, at the higher temperatures, if you see, the gas cannot be converted into the liquid. You see, gas cannot be converted. That will remain as a vapor form. So at the temperature at which this is critical temperature, is the highest temperature at which the gas can be liquefied by pressure, but above which no liquefaction is possible. So this is the highest temperature at which the gas can be liquefied. That is called the critical temperature, and the pressure required to liquefy gas at the critical temperature. At this critical temperature, whatever the pressure is there, that will be called the critical pressure. And at this critical pressure and critical temperature, whatever be the volume of the gas, that will be called the critical volume. The volume occupied by 1 gram of a gas at the critical temperature and critical pressure is called the critical volume. So van der Waals equation is this: P plus A upon V square V minus V equal to RT. So this P upon V, A upon V square equal to RT upon V minus V. तो P की वैल्यू हमारे पास RT upon V minus B minus A upon V square हमारे पास आ जाएगी. Let this equation is number 2. If you see the graph, then isothermal through the critical point X, ये हमारे पास isothermal point है X, is the horizontal at the X, that is the slope of the isothermal at X is 0. Slope अगर की बात करें, that is the slope of P and V की बात करें, तो slope क्या है हमारे पास, ये dP upon dV क्या हो जाएगा, at the point X 0 हो जाएगा. अगर इसका डबल डिफरेंशियल करें तब भी इसका 0 आएगा. तो ये अगर हम डिफरेंशिएट करें दिस इक्वेशन को, P को विद रेस्पेक्ट टू V, देन वी विल गेट लाइक दिस. ये हमारे पास आ जाएगा. तो dP अपॉन dV, इसको डिफरेंशिएट करें तो माइनस, ये हमारे पास RT एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करें तो -1 डिवाइड बाई -1 और V माइनस B का -2 आ जाएगा, वो आ गया ये. और ये हमारे पास -A और ये -2 है तो -2 इंटू V -3 आ जाएगा. तो इसका मतलब ये 2 अपॉन V क्यूब आ जाएगा. और अकॉर्डिंग टू दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया हमारे पास. नाउ अगेन वी डिफरेंशिएट दिस, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2RT डिवाइड बाई V माइनस B क्यूब -2 इंटू 3 A अपॉन V4 इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस. तो इसको हम सॉल्व कर लें. एट क्रिटिकल पॉइंट हमने भी बताया था अभी, P इक्वल टू क्या होना चाहिए, PC यानी कि क्रिटिकल प्रेशर, और V इक्वल टू VC एट क्रिटिकल वॉल्यूम एंड T इक्वल टू TC दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर. तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर दें इक्वेशन में, जो हमारे पास इक्वेशन ये वाली है. तो PEC इक्वल टू क्या हो जाएगा, RTC डिवाइड बाई VC माइनस B.
माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, और ये इससे हमारे पास जो है ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये आर टी सी डिवाइड बाई वी सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन वी सी क्यूब आ जाएगा, और ये इक्वेशन आ जाएगी टू आर टी सी डिवाइड बाई वी सी माइनस बी क्यूब इक्वल टू 6a अपॉन वी सी 4। अब इनको दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने से हमारे पास, इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा वी सी इक्वल टू 3b। इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी सी इक्वल टू 3b। नाउ वी सी इक्वल टू 3b किस इक्वेशन में रख दें हम, ये इक्वेशन में हम रख दें 8th इक्वेशन में, इसकी वैल्यू 8th इक्वेशन में रख दें, तो आर टी सी इक्वल टू 3b माइनस वी और 2a अपॉन 3b क्यूब आ जाएगा, तो आर टी सी अपॉन 4b स्क्वायर इक्वल टू 2a अपॉन 27b क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो टी सी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 8a अपॉन 27 आर बी। 8a टी सी की वैल्यू आ जाएगी 8a अपॉन 27 बी आर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड आर आ जाएगी हमारे पास। अब ये जो हमने टी सी और वी सी निकाला, इसको हम इक्वेशन 7th में रख देंगे, तो इससे जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सोल्व करने के बाद, पी सी की वैल्यू ए अपॉन 27 बी स्क्वायर आ जाएगी। तो अगर हम ये निकालें आर टी सी डिवाइड बाई पी सी इंटू बी सी, तो इसमें टी सी पी सी और बी सी की वैल्यू रख दें जो हमने निकाली इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, वो रख दें, तो इसकी वैल्यू 8/3 आ जाएगी, यानी कि आर टी सी डिवाइड बाई पी सी बी सी की वैल्यू 2.67 आती है। तो इट इज ये हमारे पास आर टी सी अपन पी सी वी सी क्या कहलाता है, क्रिटिकल कोफिशिएंट है ना, और जिसकी वैल्यू आती है 2.67, यानी कि सभी गैसेस के लिए, कोई सी भी गैस ले लें आप, तो उस गैस के लिए कांस्टेंट आएगा, है ना, ऑल गैसेस दिस वैल्यू फॉर ऑल गैसेस आर टी सी अपन पी सी वी सी क्या आ जाएगा, 2.67 आ जाएगा। नाउ कम्स टू द बॉयल टेम्परेचर। तो बॉयल टेम्परेचर की हम बात करें तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, है ना, जो हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, वो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू आर टी। ये हमारे पास आइडियल गैस के लिए होती है आइडियल गैस इक्वेशन, और रियल गैस के लिए जो है पी अपॉन वंडरवाल इक्वेशन होती है, ये वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये हमारे पास रियल गैस के लिए इक्वेशन हमारे पास होती है। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पी वी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये पी वी देखिए आप रिमेन्स कॉन्स्टेंट है, यानी कि आर कॉन्स्टेंट है, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाए तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी ओवर ए सफिशिएंट रेंज ऑफ पी। अगर पी की वैल्यू कुछ रेंज तक तो ये वैलिड है, अदरवाइज पी की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ाएं तो ये वैलिड नहीं होती। तो दिस टेम्परेचर इज नोन एज द बॉयल टेम्परेचर। पी इज नॉट टू लार्ज, है ना हमारे पास, तो जब ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा हमारे पास, बॉयल टेम्परेचर कहलाएगा, एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज, फॉर मतलब डिफरेंट गैसेज के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी बॉयल टेम्परेचर की। तो अगर वंडरवाल इक्वेशन ले हम रियल गैस की, तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो पी वी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा आर टी, ये पी बी माइनस पी बी इधर आ जाएगा, तो इधर जाके प्लस पी बी हो जाएगा, और माइनस ए अपॉन वी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। अब ये देखें आप, ए अपॉन वी, ए की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो कम होती है, और बी की वैल्यू वैसे बी कम होती है, तो ए अपॉन वी एंड ए बी अपॉन वी आर वेरी स्मॉल, तो वी कैन मेक द अप्रोक्सीमेट सब्सटीट्यूशन, हम कर सकते हैं, है ना, किसकी जगह हम v अब 1/v की जगह, क्योंकि p इक्वल टू आर टी होता है, तो p अपॉन आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v, है ना। इससे जो है हमारे पास p अपॉन आर टी, इससे जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी 1/v। तो 1/v की जगह हम जो है p अपॉन आर टी लिख सकते हैं। तो ये हमने इस इक्वेशन में 1/v की जगह p, ये आर टी अपॉन पी हमने लिख दिया, p अपॉन आर टी की वो 1/v में लिख दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो पी वी इक्वल टू आर टी या हमारे पास आ जाएगा, p कॉमन आ जाएगा इसमें। तो नाउ दिस टर्म, क्योंकि a एंड b बोथ आर वेरी स्मॉल, तो ए बी की जो प्रोडक्ट होगी बहुत कम, मतलब जो है स्मॉल हो जाएगी, तो इसको हम टर्म को, जो लास्ट टर्म है इसको हम छोड़ देते हैं। तो पी वी इक्वल टू आर टी प्लस पी बी माइनस ए अपॉन आर टी आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू पी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, और तो ये हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए अपॉन आर टी। तो एट बॉयल टेम्परेचर टी बी, अगर बॉयल टेम्परेचर को हम टी बी से लिखें तो इज द प्रोडक्ट पी वी रिमेन्स कॉन्स्टेंट हमारे पास आएगी, है ना, फॉर आइडियल गैस ओवर ए सफिशिएंट रेंज ऑफ पी। जो हमने कहा है कि एक सफिशिएंट रेंज प्रेशर की, तब तक हमारे पास ये जो है कांस्टेंट होगा। तो ये हम इसको डी पी वी डिवाइड बाई डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पी वी जो है कांस्टेंट है फॉर ए सफिशिएंट रेंज ऑफ टेम्परेचर।
तो ये हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। तो b माइनस ए अपॉन आर टी, क्या b t क्या हो जाएगा, कन्वर्ट टी बी में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो टी बी इक्वल टू ए अपॉन बी आर आ जाएगा। अब हम टी सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो टी सी की वैल्यू हमारे पास इससे 11 से है, तो इस इक्वेशन 17 और 11 को डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास टी बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि बॉइल टेम्परेचर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाएगी। टीबी आ जाएगा 27/8 इंटू टी सी। नाउ वी कम्स टू द थर्मोडाइनेमिक प्रूफ ऑफ द मेयर्स रिलेशन। तो इसमें हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर P, केल्विन टेम्परेचर कैपिटल T एंड वॉल्यूम V। Cp एंड Cv क्या होंगे, हमारे पास स्पेसिफिक हीट्स होंगी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम होगी। मॉलिकुलर स्पेसिफिक हीट्स हैं हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर हम लें तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जो हमने पहले भी लेक्चर्स में बताया है। तो लेट द गैस बी हीटेड, अब इसको हम हीट करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम फर्स्ट एंड देन आफ्टर कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको हीट करें तो हमारे पास क्या होगा, जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो क्या होगा, हमारे पास 0 के बराबर होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं। तो जब वॉल्यूम हमारे पास बढ़ेगा नहीं, जैसे हमारे पास ये है ना, ये पिस्टन है, वो सिलेंडर है और ये पिस्टन है, तो इसका हमने जो है टेम्परेचर क्या रख दिया, इसमें जो गैस है हमारे पास, इसका वॉल्यूम जो है V कांस्टेंट रखा, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हमारे पास तो पिस्टन मूव नहीं करेगा, पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका एक्सटर्नल वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम रख दें, डी क्यू क्या हो जाएगा, एम इंटू सी बी एम इंटू सी इंटू डी टी होता है। एम क्या होगा 1, क्योंकि 1 मोल ऑफ द गैस है। सी जो है हमारे पास सी बी हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक एट द कांस्टेंट वॉल्यूम है। और टेम्परेचर जो चेंज किया हमने वो किया डी टी। तो डी क्यू जो है हमारे पास 1 इंटू सी वी इंटू डी टी, यानी कि सी वी डी टी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज जो है हम इसमें, और डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वर्क डन क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क डन जो है हमारे पास 0 हो जाएगा। तो डी क्यू जो है वो सी वी डी टी प्लस डी यू प्लस 0, यानी कि जो भी हम टेम्परेचर हीट करेंगे देंगे, एनर्जी देंगे, वो इसकी गैस की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में काम आ जाएगी। तो सी वी डी टी इक्वल टू डी यू। नाउ अब गैस को हम हीट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर। जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करते हैं तो उसमें जो है उसके द्वारा एक्सटर्नल वर्क डन हो, यानी कि वॉल्यूम उसका चेंज हो जाएगा। वो कितना चेंज होता है, हमने मान लिया डीवी चेंज हो गया, चेंज इन वॉल्यूम डी है डीवी है। तो एट द गैस एक्सपेंड, जो गैस एक्सपेंड करेगी, जब हम इसको हीट देंगे तो गैस एक्सपेंड कर जाएगी, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास जो है एज द गैस विल एक्सपेंड एंड एक्सटर्नल वर्क विल बी डन, सो अगेंस्ट द प्रेशर को, प्रेशर कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो P, तो dW क्या हो जाएगा, P इंटू डी के बराबर हो जाएगा। वर्क डन जो है प्रेशर इंटू वॉल्यूम के बराबर होता है, जो हम पहले बता चुके हैं। तो ये जो DQ है वो 1 इंटू सी पी इंटू डी टी हो जाएगा, यानी कि हमारे पास DQ CP dt के बराबर हो जाएगा, और dW जो है P इंटू डी के बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बी डी टी इक्वल टू सी वी डी टी, क्योंकि डी यू हमने निकाला पहले केस में, सी वी डी टी प्लस पी डी वी, तो सी पी माइनस सी वी डी टी इक्वल टू पी डी वी आ जाएगा। नाउ फॉर ए सफिशिएंट रेंज ऑफ प्रेशर, जो आइडियल गैस की इक्वेशन है वो पी इक्वल टू आर टी, तो इसको डिफरेंशिएट करिए फॉर ए एट ए कांस्टेंट प्रेशर, तो पी वी डी वी इक्वल टू आर डी टी, क्योंकि हम प्रेशर जो है सफिशिएंट रेंज तक कांस्टेंट मान रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको और इसको दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो हमारे पास सी पी माइनस सी वी डी टी इक्वल टू आर डी टी, तो सी पी माइनस सी वी की जो वैल्यू है वो आर आ जाएगी। So this relation is called Mayer's relation, Mayer's relation, because Mayer's has calculated this formula first. So this is all about the Mayer's relation. Thank you.